This is the special initiative on environment and ecology for civil services preliminary 2017, and this is a post-mortem on insights, special issues on current affairs. So आज का topic hit list topic number 24 and topic name is tiger conservation. This is due to current affairs. Okay, so be ready for the questions. आप लोग पहले से तैयार होंगे. प्लीज पेन निकालिए बाहर and start question answering. Which organization is going to be India's first repository on tigers? Wildlife Institute of India, National Tiger Conservation Authority, Zoological Survey of India, and none of the above. First repository on tigers. India's first repository on tigers. Now, second question. India's first tiger cell was set up at the WII campus in Madhya Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Gujarat. And third, which of the following are correct regarding Wildlife Protection Act 1972? The name of protected species of animals, birds and plants have been mentioned in the Schedule 1st of Wildlife Protection Act 1972. Second, legal protection has been provided to wild animals against hunting and commercial exploitation. क्या हंटिंग और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में दिया गया है? और पहला है कि क्या शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का प्रोटेक्ट करता है स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को? सोच लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 which organization has been empowered to apprehend and prosecute wildlife offenders? जो वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में क्राइम करते हैं, उनको एप्रीहेंड को पकड़ने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्टेट पुलिस ऑफ कंसर्न स्टेट. नेक्स्ट, consider the following statements. The population of tigers has gone down globally, while in India it has increased. Right or wrong? India is home to 70% of global tiger population. Right or wrong? सोचिए. Next question. In 2010, tiger range governments agreed to act to double wild tigers by 2022. This goal is known as Mission Tiger Reserve, T2, Mission 200, none of the above. Now start the topic. Wildlife Institute of India will house the India's first repository on tigers under new tiger cell. कौन करेगा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडियाज फर्स्ट रिपोजिटरी को हाउस करने वाला है. द रिपोजिटरी विल कंसिस्ट ऑफ ह्यूज डेटाबेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन एंड पॉपुलेशन एस्टिमेशन. ये बहुत ज्यादा डेटाबेस रखने वाला रिपोजिटरी एंड विच विल बी प्रिपेयर्ड विद कोलैबोरेटेड एफर्ट विद द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसमें हेल्प करेगा, लेकिन रिपोजिटरी बनेगी कहां? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में. ठीक है. टाइगर सेल विल असिस्ट इन पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ टाइगर्स, लॉ एनफोर्समेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स एटसेट्रा. ठीक है. और इंडिया फर्स्ट टाइगर सेल वाज सेट अप एट द WII कैंपस इन देहरादून, उत्तराखंड. यानी कि इंडिया फर्स्ट टाइगर सेल कहां बनाया गया? देहरादून, जो कि कहां पे है? उत्तराखंड में. अगर ये क्वेश्चन भी होगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा. तो पॉइंट नंबर 1 कि WII house the India's first repository. Point number 2 कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी हेल्प करती है इस डेटाबेस को मेंटेन करने बनाने में. और तीसरा कि इंडिया फर्स्ट टाइगर सेल was set up at WII campus in देहरादून, उत्तराखंड. Next, Wildlife Crime Control Bureau has been set up to ensure coordination among various officers and state governments for enforcement of law for control of poaching and illegal trade. पोचिंग और इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कौन बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ
Crime Control Bureau. Point number 1. Botanical Survey of India has brought a number of endemic and threatened plants under cultivation. Ex situ conservation. Ex situ conservation का क्या मतलब होता है? In situ का मतलब होता है जहां पे वो पाए जाते हैं. एक्स सीटू का कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जहां वो पाए जाते हैं उससे अलग ले जाकर के, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जिनको हम प्रोटेक्शन देते हैं, उनको पालते हैं, उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं. ठीक है. द नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 has been enacted to ensure protection of threatened species and their habitats. नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एनबीए 2002 की कुछ खास बातें हैं. ये प्रोटेक्शन तो करता ही है, साथ साथ ये नागोया प्रोटोकॉल से भी मिलता है. 2010 में जो पास किया गया था नागोया प्रोटोकॉल, इसमें एक्सेस बेनिफिट और शेयरिंग की बात करते हैं. शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था. तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन इंडिया, प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उनका भी प्रोटेक्शन करने की बात चल रही है. तो वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन इंडिया. दे आर नंबर 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है. और क्या किया गया है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड कंट्री वाइड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया गया है. तीसरा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगेंस्ट हंटिंग एंड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. इसके लिए भी रोक लगा दी गई है. एंड स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किए गए हैं. एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट यूटीज अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सीएससी के तहत फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट दिया जाता है. And under the Wildlife Protection Act, the Central Bureau of Investigation has been empowered to apprehend and prosecute wildlife offenders. जो वाइल्ड लाइफ क्राइम करते हैं उनको सीबीआई को मौका दिया गया है कि वो करे. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जरिए, और हंटिंग एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को रोक लगाया गया है. साथ ही साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर आदि शुरू किए गए हैं. एंड फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट भी दिया जाता है. और सीबीआई को बनाया गया है, एम्पावर किया गया है कि वो अप्रीहेंड करे इनको और प्रोसिक्यूट करे ऑफेंडर्स को. नाउ सेविंग द टाइगर. सेविंग द टाइगर की बात करते हैं. The number of wild tigers has gone up globally by 22%. Globally by 22% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है. 2000 जो 3200 थी अब वो 3890 हो गई है. एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF एंड द ग्लोबल टाइगर फोरम GTF ने ये इंफॉर्मेशन दी है. WWF T22 टाइगर इनिशिएटिव अकॉर्डिंग WWF 100 years ago there were 1 lakh wild tigers. 2010 में टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स ने एग्री हुए ये लोग, सारे लोग, कि जो वाइल्ड टाइगर्स हैं इनको 2022 तक इनकी पॉपुलेशन को दो गुनी कर देनी है. और इसका नाम रखा इन्होंने इस गोल को T2, T multiplied by 2. ठीक है. इन द पास्ट सेंचुरी with 97% of their population dying out shows how much work remains to be done. Now as per latest official count, India is home to 2226 tigers, यानी कि 70% पॉपुलेशन टाइगर्स की इंडिया में पाई जाती है. इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया 1973 में, राइट. एंड द प्रोजेक्ट टाइगर इज एन ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है. द टाइगर रिजर्व आर constituted on a core buffer strategy. The core area have the legal status of national park or sanctuary, whereas the buffer of peripheral areas are a mix of forest and non-forest land managed as a multiple use area. The project Tiger aims to foster an exclusive tiger agenda in the core areas of tiger reserves with an inclusive people-oriented agenda in the buffer. प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? एम्स टू फॉस्टर एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा. जो कोर एरिया होगा, आपको बायोस्फीयर रिजर्व की कुछ याद आ रहा होगा. बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे कोर एरिया होता है, इसे टाइगर रिजर्व में कोर एरिया बनाया जाता है जहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है इनको. और उसके बाद जो बफर जोन होता है वहां पे दोनों लैंड पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड पाए जाते हैं. ठीक है. क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो याद रखनी है कि जो वाइल्ड की टाइगर की पॉपुलेशन है दैट हैज गॉन
that has gone globally up by 22%. दूसरी बात कि इंडिया 70% जो टाइगर्स हैं पूरे वर्ल्ड के उनको हाउस करता है. तीसरा, उनकी पॉपुलेशन को टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स ने 2 गुना करने की बात की है 2022 तक. इसको बोला जाता है T2. ठीक है ना. एंड चौथा कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं इनमें कोर एरिया होता है जहां पे टाइगर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है. अगेन लेट्स गो टू द क्वेश्चन. The population of tigers has gone down globally while in India it has increased. ये स्टेटमेंट गलत है. ये स्टेटमेंट गलत है. इंडिया इज होम टू 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन. ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि सिर्फ 2 सही है. In 2010, tiger range governments agreed to act to double wild tigers by 2022. This goal is known as option B. And which organization is going to be India's first repository on tigers? Wildlife Institute of India. And India's first tiger cell was set up at the WII campus in Dehradun, Uttarakhand. And which of the following is correct regarding Wildlife Protection Act 1972? The names of protected species of animals, birds and plants have been mentioned in Schedule 1st of Wildlife Protection Act. Protection Act 1972 के Schedule 1 में लिखा गया है प्रोटेक्शन के लिए. And legal protection has been provided to wild animals against hunting and commercial exploitation. Hunting और commercial exploitation के against इनको दिया गया है राइट्स. तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. Under the Wildlife Protection Act 1972, which organization has been empowered to apprehend and prosecute wildlife offenders? This is Central Bureau of Investigations. So thank you very much for watching this video. Please subscribe for complete current affairs preparation for Prelims 2017 and visit our website stepupias.com for practice and revision and then get success in preliminary. Thank you very much. We will meet you soon.